Students, hope you are doing well. Today we will discuss new topic, that is animal cell versus plant cell. In this topic, three types of questions can come. First type, similarities between animal and plant cell. Second type, dissimilarities or differences between animal and plant cell. Third type, comparison with animal and plant cell. So let's start with the similarities between animal and plant cell. Following parts or cell organelles are found in both animal and plant cells. First, plasma membrane or cell membrane. Second, cytoplasm. Third, Golgi apparatus or Golgi body or Golgi complex. Fourth, endoplasmic reticulum. Fifth, ribosomes. Sixth, mitochondria. Seventh, nucleus. And eighth, nuclear membrane. Okay? इस बॉक्स में आपके लिए टिप है जिससे आप ये सारे टर्म्स को आसानी से लर्न कर सकते हो। टिप में क्या लिखा हुआ है? लिखा है पीसी जर्म एनएन। इसको थोड़ा फनी वे में लेते हैं जिससे हमेशा के लिए याद हो जाए। आपसे कोई पूछ रहा है कि आपके पीसी में जर्म है क्या? आप रिप्लाई कर रहे हो नो नो। अब इन सारे लेटर को इससे रिलेट करते हैं। ओके, पहला लेटर लेते हैं पी, पी फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट लेटर सी, सी फॉर साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट जी, जी फॉर Golgi apparatus or Golgi body or Golgi complex. Next E, E for endoplasmic reticulum. Next R, R for ribosomes. Next M, M for mitochondria. Next N, N for nucleus. Next N, N for nuclear membrane. Now, dissimilarities or differences between animal and plant cell. There are two columns. In first column, there are all points for animal cell. In second column, there are all points for plant cell. So let us start from the first point. Cell is small in size in animal cell. For plant cell is large in size. Second point, cell wall is absent in animal cell. For plant cell wall is present and form of cellulose. Next point, plastids are absent except in euglena in animal cell. For plant cell, plastids are present. Next point, one or more small vacuoles are present in animal cell. For plant cell, one large central vacuole taking up to 90% of cell volume is present. Next point, chloroplast is absent in animal cell. For plant cell, chloroplast is present. Next point, lysosomes are present in animal cell. For plant cell, lysosomes are absent. Next point, Golgi apparatus is bigger in size in animal cell. For plant cell, Golgi apparatus is smaller in size. Next point, centrosomes are present in animal cell. For plant cell, centrosomes are absent. Now, comparison with diagram. There are two diagrams. First is animal cell and second is plant cell. यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ दो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये एनिमल सेल का डायग्राम है और ये प्लांट सेल का डायग्राम है। ओके, जब कंपैरिजन वर्ड लिखा हो क्वेश्चन में तो इसका मतलब है कि आपको सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज दोनों पॉइंट्स लिखने हैं। तो सिमिलरिटीज के लिए यहाँ ग्रीन बॉक्स है और डिसिमिलरिटीज के लिए ये रेड बॉक्स है। ग्रीन बॉक्स में सिमिलरिटीज के टिप दिए हुए हैं और रेड बॉक्स में डिसिमिलरिटीज के टिप दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं सिमिलरिटीज से। फर्स्ट लेटर है पी, पी फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये एनिमल सेल के डायग्राम में आउटर मोस्ट लाइन जो है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके, इसी तरह से प्लांट सेल में जो आउटर मोस्ट लाइन है इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे टू लाइन्स है, तो टू लाइन्स में जो इनर वाला लाइन है, अंदर वाली लाइन, उसको कहेंगे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन और बाहर वाले लाइन को सेल वॉल कहा जाता है, जो कि डिसिमिलरिटी का पॉइंट। सेकंड लेटर है सी, सी फॉर साइटोप्लाज्म। ये बीच का स्ट्रक्चर जो है स्फेरिकल स्ट्रक्चर, इसको न्यूक्लियस कहा जाता है और न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन से घिरा होता है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच के पोर्शन को, पूरे पार्ट को साइटोप्लाज्म कहा जाता है। सिमिलरली प्लांट सेल में भी न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर अप होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच वाले पार्ट को साइटोप्लाज्म कहा जाता है। नेक्स्ट लेटर है जी, जी फॉर गोल्जी बॉडी। यहाँ जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको गोल्जी बॉडी कहा जाता है। ओके, और प्लांट सेल में ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको गोल्जी बॉडी कहा जाता है।
नेक्स्ट लेटर है ई फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस के पास वाले स्ट्रक्चर को, जो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं और उसके बाद वाले स्ट्रक्चर को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। प्लांट सेल में भी देखते हैं, न्यूक्लियस के पास वाला जो स्ट्रक्चर है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है और उसके बाद जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। नेक्स्ट लेटर आता है आर, आर फॉर राइबोसोम्स। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर में आपको पिंक डॉट्स दिख रहे होंगे, इसको राइबोसोम्स कहा जाता है। इसी तरह से यहाँ भी देख लेते हैं, पिंक डॉट्स दिख रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, इसको राइबोसोम्स कहते हैं। नेक्स्ट लेटर आता है एम, एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है, इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। इसी तरह से प्लांट सेल में इस स्ट्रक्चर को माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट लेटर है एन, एन फॉर न्यूक्लियस। इसको पहले समझा चुके हैं, स्फेरिकल स्ट्रक्चर को न्यूक्लियस कहा जाता है, यहाँ भी स्फेरिकल स्ट्रक्चर को न्यूक्लियस कहा जाता है। नेक्स्ट लेटर फिर से आ गया एन, इस एन का मीनिंग है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर अप होता है, यहाँ भी और इस सेल में भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर अप होता है। तो सिमिलरिटीज दोनों के हो गए, अब डिसिमिलरिटीज में आते हैं। पहला लेटर है डिसिमिलरिटीज के लिए वी, वी फॉर वैक्यूल। एनिमल सेल में जो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको वैक्यूल कहा जाता है और ये स्मॉल साइज का होता है, बट प्लांट सेल में ये वैक्यूल बड़े साइज का होता है। नेक्स्ट लेटर है एल, एल फॉर लाइसोसोम। यहाँ जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको लाइसोसोम कहा जाता है, ये सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में ऐसा स्ट्रक्चर आपको कहीं नहीं दिख रहा होगा, यानी कि प्लांट सेल में ये नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट लेटर है सी, सी फॉर क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में पाया जाता है, ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, लेकिन एनिमल सेल में आपको ये स्ट्रक्चर कहीं नहीं नजर आ रहा होगा, यानी कि एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट सी आता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम पहले वाले पॉइंट से ठीक रिवर्स है। सेंट्रोसोम एनिमल सेल में पाया जाता है बट प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। ओके, यहाँ देखिए ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं, इस तरह का स्ट्रक्चर प्लांट सेल में आपको नहीं दिख रहा है, यानी कि सेंट्रोसोम सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाएगा, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। ओके, लास्ट सी का मीनिंग है सेल वॉल। ये प्लांट सेल में पाया जाता है बट एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। देखिए यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन नहीं है, लास्ट वाला मेम्ब्रेन नहीं है, तो वो सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है बट प्लांट सेल में पाया जाता है और सेल वॉल की वजह से प्लांट को रिजिडिटी मिलता है। दैट्स इट।